ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر بلوچستان شہداء فورم کے رہنما نیشنل پریس کلب کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلوچ کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، کبھی پنجابی کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، کبھی پشتون کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، مختلف زبان بولنے والوں کو مختلف زبان بولنے والوں سے لڑایا جاتا ہے، اور صرف اس کا فائدہ ملک دشمن کو ہے۔ اسی طریقے ایک سازش کے تحت بلوچستان میں شدت پسندی کو فعال کیا جا رہا ہے، جس میں سر فہرست تنظیم BLA BRA BLF موجود ہے، جو کہ آج بھی ایک پریشر پوائنٹ کے تحت بلوچستان میں کارروائیاں کرا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ان تنظیموں کو ہے اور کچھ سیاسی تنظیموں کو ہے۔ آڈیو نہیں آ رہی نا؟ تو آج جیسے ہم بلوچستان شہداء فورم کے توسط سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اس آگ میں جل رہے ہیں۔ ہم رات کو جب سونے جاتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارے پیاروں کے آواز ہمیں پکارتا ہے کہ ہمارے پیاروں کا خون کس کے ہاتھوں جاتا ہے، ہمارے پیاروں کو کس نے شہید کیا، ہمارے پیاروں کو کس نے قتل کیا، ہمارے پیاروں کو کس نے شدت پسندی کا نشانہ بنایا۔ آج میں ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان جرنلسٹ سے جو اپنے آپ کو انویسٹیگیشن جرنلسٹ کہتے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پیاروں کا خون کیا اتنا سستا ہے؟ کیا ہمارے سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پیاروں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا بلوچ کا، پنجابی کا، پشتون کا خون کی قیمت اور ان کا رنگ الگ الگ ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ BLA BRA اور BLF جیسے دہشت گرد تنظیموں کو کس نے اجازت دی کہ وہ ہمارے پیاروں کو شہید کر دن دہاڑے پھریں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پیاروں کو بلوچی عدالت کے تحت ان کو غائب کیا جاتا ہے مہینہ دہ مہینہ، سالوں سال، اور پھر ان کو اپنے ہی نجی عدالتوں میں یہ دہشت گرد ان کو مجرم قرار دے کر ان کے آنکھوں میں گولیاں مار کر شہید کرتے ہیں، اور ان کے لاشیں سڑکوں پر پھینک جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں انصاف کون دے گا؟ ہم شہداء فورم کے جو ممبرز ہیں اور شہداء کے لواحقین ہیں، آج صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم آپ لوگوں سے، آپ جرنلسٹ سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ بلوچستان کا کہانی دکھا رہے ہیں، اگر آپ بلوچستان کے پہلو دکھا رہے ہیں، تو خدا را پورا کہانیاں دکھائیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، ہمارے پیارے بھی شہید ہوتے ہیں۔ آپ ادھر موجود اس والد سے پوچھیں جو کہ روزی کمانے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، اس کے بیٹے کو کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ آپ اس بچے سے پوچھیں کہ اس کے والد کا کیا قصور تھا کہ اس کے والد کو شہید کیا گیا؟ آپ پیچھے بیٹھے اس والدہ سے پوچھیں کہ اس کے بیٹے کا کیا قصور تھا کہ اسے شہید کیا گیا؟ آپ اس والدہ سے پوچھیں کہ جس بیٹے نے اس کے ساتھ بہت سارے وعدے کی، کیا آج وہ ان کے چاہتے ہوئے بھی یہ وعدے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں؟
तो खुदारा आप लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि बलूचिस्तान का ये कहानी भी दिखाएं, क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर हमें शहीद किया जा रहा है, हमें पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल शायद ना यहाँ ना हो। आज हम अपने शोहदा के लिए अगर बात कर रहे हैं, शायद कल हमें भी टारगेट किया जाए, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कहानियाँ भी लोगों को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं, पूरे मुल्क को दिखाएं कि हमारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियत की खातिर शहीद हुए, बलूचिस्तानियत की खातिर शहीद हुए। क्योंकि आधी कहानी दिखाने में सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन का फ़ायदा होता है और हम इस आग में जलते रहेंगे। बलूचिस्तान शोहदा फोरम की तवस्सुत से हम आप लोगों से फिर दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ सब तक पहुंचाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आज जहां हम बैठे हैं, आज जिस दर्द से हम गुज़र रहे हैं वो हमें और हमारी अल्लाह को पता है। वो जो हमारे प्यारे हमसे ज़बरदस्ती छीने गए हैं, उसका दर्द हम तक क़यामत नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने शोहदा के लिए आवाज़ ना उठाएं तो हमें हमारा ज़मीर मलामत करता है। हम जानते हैं कि रियासत हमारी मुश्किलात को समझता है। कभी कभार रियासत को हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और कभी कभार उनको ज़ोर की बुनियाद पर समझाते हैं। तो आप सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ आप पहुंचाएं, ताकि कल के दिन किसी और माँ के साथ ये जुल्म ना हो, कल के दिन किसी और बच्चे के साथ ये जुल्म ना हो, कल के दिन किसी और बेटी के साथ ये जुल्म ना हो। आखिर में मैं अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, ख्वाह वो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ हो, ख्वाह वो फ़ौजी इदारों से उनका ताल्लुक़ हो या सिविल लाइन इदारों से उनका ताल्लुक़ हो, वो हमारे सरों के ताज हैं। आखिर में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन कर देना, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन कर देना, मुझे इस मुल्क का पानी पिला देना, मुझे इस मुल्क का पानी पिला देना। मैं ताज महल तो नहीं मांग रहा, मैं ताज महल तो नहीं मांग रहा, बस मेरे कब्र पर ये सब्ज़ हिलाली परचम लहरा देना। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। इसके बाद शोहदा के कुछ लवाकिन आपसे अपने ख्यालात का जिक्र करेंगे। मीर फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए हैं और शोहदा फोरम के कैंप पर। मैं मीडिया को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने शहीदों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूँ। जब हमें मारा जाता है तो वहाँ से तंजीमें कबूल करते हैं BLA, BLF, UBA के नाम पे, और उन्हीं दहशत गर्दों के लिए चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन बनाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के शहीदों के लिए, जिन एक एक धमाके में हमारे 300 लोग शहीद होते हैं। जब सिराज रैसानी पर धमाका हुआ तो एक माँ के 7 लख्त जिगर शहीद हुए। आप मीडिया ने तो किसी को नहीं दिखाया कि एक धमाके में 7 लख्त जिगर शहीद होते हैं। मैं आसमानी मरी की लहू किसके हाथ पे तलाश करूं, जो आज से 6 दिन पहले बोलान से उठाया गया था। चीफ जस्टिस साहब, बलोची अदालत में उसको सजाए मौत दिया गया और उसकी आंखों में गोलियां मारी गई। क्या इस मुल्क में दो अदलिया के निजाम है? क्या मेरे भाई को मरवाया है तो ख्वाब के सूरत में हमारे लोगों को शहीद किया जाता है। बलोची अदालतों में कहा जाता है कि ये कसूरवार है, इसको मार दो। क्या उस बच्चे का खून मैं किसके हाथ पे तलाश करूं कि ख्वाब के जरिए भी हमारे लोगों को ये दहशतगर्द, ये जालिम शहीद करते हैं?
क्या मैं डॉक्टर अताउल्लाह के बेटे का खून किसके हाथ पे तलाश करूं जो 6 दिन पहले उसको मुंगचर से उठाकर उसके आंखों में गोलियां मार के फेंक दिया गया? क्या मच के शहीदों का 3 दिन पहले वो 10 साल के शहीद का मैं खून किसके हाथ पे तलाश करूं जो शहीद हो गया? क्या मैं उस बच्चे का जो आज CMH में जिंदगी और मौत की कशमकश में 10 साल का बच्चा जो पड़ा हुआ है, क्या उसका उन शहादतों का जिम्मेदार कौन है? मैं रियासत से कहना चाहता हूं कि आप दहशतगर्दों के सामने घुटने ना टेके, आप दहशतगर्दों को जवाब दे, नहीं तो शोधा की वर्षा अब जवाब देने के लिए भी हाजिर है। मेरे भाइयों, हम जब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, अगर तो हमें शहीद किया जाता है तो आप कहें पाकिस्तान जिंदाबाद कहना अगर एक जुर्म है तो यह जुर्म हम करते जाएंगे। अगर हम बलोचिस्तान में पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं तो हमें शहीद किया जाता है, तो पाक फौज जिंदाबाद कहना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। मेरे भाइयों, जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर मिसिंग पर्सन की बात होते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि एक धमाके में हमारे 300 लोग शहीद होते हैं, उनके लिए जुडिशल कमीशन आप क्यों नहीं बनाते हैं? जब हमें शहीद किया जाता है तो मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से कबूल किए जाते हैं। किसी को इंडिया में बैठ के व्हाट्सएप पे कबूल करते हैं इंडियन नंबर से, या अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगानी नंबरों से कबूल करते हैं। क्या मैं अपने लोगों को इस तरह तना छोड़ूं? ये उन दहशतगर्दों की भूल है। हम मरेंगे, आप जितने भी मारेंगे, हमारे सीने धमाकों और गोलियों के लिए हाजिर है, लेकिन हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। आखिर में मैं आप मीडिया से भी ख्वाहिश करता हूं कि आप आए बलोचिस्तान, आप इस्लामाबाद से निकले, मैं बलोचिस्तान के शहीद के घर पे आपको ले जाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, आप इस कोर्ट से निकले, आप आए बलोचिस्तान में, आपको मैं मस्तूंग में बिठाऊंगा कि कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं। आपको मैं कलात में बिठाऊंगा कि इन जालिमों ने कितने लोगों को शहीद किया है। आपको मैं गुजदार में बिठाऊंगा कि इन जालिमों ने कितने लोगों को शहीद किया गया है। आपको मैं हज़ारा बिरादरी की क्या कहानी सुनाऊं, जिनके 4000 से ऊपर शोधा हैं, उनको किसने शहीद किया है। अल्लाह के वास्ते मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, मैं रियासत को भी कहना चाहता हूं, हमारे सब्र के पैमाने अभी लबरेज हो चुके हैं। अब हम उठेंगे, नहीं तो अपने शहीदों का बदला हम खुद लेंगे, अगर रियासत खामोश है, अगर ये अदालतें खामोश है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे इंडियन वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे इंडियन वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तुम कितने सिराज मारोगे, हर घर से सिराज निकलेगा, तुम कितने शाहिद जहरी मारोगे, हर घर से शायद जहर निकलेगा। तुम कितने अमीर अकमल मारोगे, हर घर से अकमल निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब शोधाओं के फैमिलियाँ यहाँ पे जमा हुए हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें एक सवाल जो हम जब सोते हैं तो हमारे कानों में गूंजता है, जब हम आँख खोलते हैं तो हमारे सामने होता है। वो सवाल ये है कि हमारे लोगों को क्यों तंजीम ने शहीद किया, आखिर हमारा क्या गुनाह था। मेरा तो उम्र 8 साल था, जालिमों ने मेरे ऊपर मेरे बाप का साया हटाया। उसके बाद ये तंजीम रुके नहीं, 2013 में मेरे भाई को शहीद किया, मुझे महरूम किया एक बड़े भाई की साया से। उसके अलावा मेरे ख़ानदान में 8 से ज़ायद बंदों को तंजीम ने शहीद किया। ये सवाल मैं आप मीडिया